A very good morning to all of you students. I hope you all are fit and fine at your places and doing your work properly. This is Monica Arora and I am basically from Rohtak and I am here to teach you the subject EVS. Okay students, first of all we will talk about EVS. What is EVS? What does it means? EVS stands for beta environmental studies. Okay students, it taught us in the three terms of the subjects. Okay students, first one is history, second is geography, and third is science. EVS is the mixture of these three subjects. Okay students, now why do we study EVS? हम EVS क्यों पढ़ते हैं बेटा? EVS help us to develop our own insights and it help us to connect with the nature and human made surroundings. ये हमें nature से जोड़ता है और human made surroundings से जोड़ता है. Okay students, so today our topic is soil. We will study about soil. Okay students, now our first question is what is soil and how it is formed? Soil is the topmost layer of the earth. Okay students, it is the essential part of the nature too. ये हमारे लिए बहुत important है और हमारे nature के लिए भी. Okay students, millions of years ago when our earth was born, जब हमारी धरती पैदा हुई थी ना, only water and rocks were present on it. सिर्फ उस पर पानी और rocks थे. Now the force of flowing of water and the action of sun, wind, rain, ice are responsible for breaking the rocks into the smaller pieces. ये चीज़ें जो हैं बेटा, wind, rain, ice and due to heavy rainfall, जो हमारे बड़े बड़े rocks होते हैं ना, they are breaking into the smaller pieces. वो small pieces में divide हो जाते हैं, टूट जाते हैं. When the rock breaks, they get smaller in size. वो अपने size में small हो जाते हैं और that time they do not stay at one place. वो एक जगह पर नहीं रह सकते. They are carried away from one place to another place. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. कैसे जाते हैं बेटा? Through by wind, heavy rains, air. Okay students, and in the form of ice. This process is called weathering of rocks. This process is called beta weathering of rocks. Okay students, I will tell you again. weathering of rocks क्या होते हैं बेटा? ऐसे रॉक्स जो स्मॉल पीसेस में टूट कर और एक जगह पे नहीं रहते, जब वो नीचे गिरते हैं तो वो थ्रो यानी कि फ्लोइंग ऑफ रेन की वजह से या वाटर में वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. नाउ द फाइन पाउडर ऑफ द रॉक्स मिक्सेस विद मिनरल्स एंड ह्यूमन्स. ओके स्टूडेंट्स, these fine powder which comes from the plants and decayed animals, that is called soil form. इसकी वजह से हमारी soil form होती है. ओके स्टूडेंट्स, अब इसी वेदरिंग ऑफ रॉक्स को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. देखिए ये कितना ब्यूटीफुल सन है. सुबह सूरज की रोशनी कितनी तेज होती है, उसकी गर्मी की वजह से हमारे जो पहाड़ हैं वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं और रात को जब सर्दी होती है तो वही पहाड़ सिकुड़ जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसी सिकुड़ने और एक्सपेंड होने की वजह से हमारे पहाड़्स में क्रैक आ जाते हैं. बेटा छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं, जिसकी वजह से रॉक्स के पीसेस, जो हमारी चट्टान है ना, उसके टुकड़े टूटने लग जाते हैं और इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं
जिसकी वजह से बेटा वो एक जगह पे नहीं रह सकते, वो पानी में गिरते हैं, या तो रेन की वजह से, हैवी रेनफॉल हो, या हवा की वजह से, नहरों की वजह से, नदियों की वजह से वो एक जगह पे दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और यही फाइन पाउडर जो इन रॉक्स का फाइन पाउडर बनता है, वही फाइन पाउडर की वजह से हमारी मिट्टी निर्मित होती है, यानी कि हमारी सॉइल फॉर्म होती है। अब हम रीड करेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल्स। There are 3 layers of soil, students. First is topsoil, second is subsoil, and third is rock. Firstly, we will discuss rock because when we dig our ground, जब आप हमें ये rock जो है वो दिखाई नहीं देता बेटा, जब हम ground को dig करते हैं ना, तो it is the deeply part in the soil. ये soil के अंदर बहुत deeply होता है, जो हमें सिर्फ ground को dig करने पर ही दिखाई देगा। तो firstly we will talk about soil. Rock क्या होता है बेटा? Rock देखिए, ये large pieces of rocks हैं, जो हमारे रॉक ब्रेक होते हैं उनके लार्ज पीसेस से बनता है बेटा रॉक। उसके बाद सेकंड इज सब सॉइल। सब सॉइल क्या होता है बेटा? जिसके अंदर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। इट होल्ड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स और इट इज द लाइटन इन द कलर। ये लाइट में होता है कलर में एंड इट इज द हार्ड रॉक। ये हार्ड सॉइल होता है बेटा। उसके बाद है थर्ड इज टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के ऊपर एक थिन लेयर होती है, बिल्कुल पतली सी लेयर, वो थिन लेयर होती है बेटा ह्यूमस। और ह्यूमस कैसे बनती है? जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स, जो भी हमारे पशु मर जाते हैं या हमारे प्लांट्स मर जाते हैं, तो देयर आर स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल। वो एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसको डिकम्पोज कर देते हैं। किसको डिकम्पोज कर देते हैं बेटा? डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को, जिसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है और उसी लेयर को बेटा हम कहते हैं ह्यूमस। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले व्हाट इज सॉइल एंड हाउ इट इज फॉर्म, एंड द सेकंड टॉपिक इज लेयर्स ऑफ सॉइल। तो आज जो मैं आपने पढ़ा है आपको उसे अच्छे से याद करना है, उसे रीड करना है। नाउ हम जो है जो इसके ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे कि सॉइल कैसे फर्टाइल होती है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल एंड थैंक यू एंड सी यू अगेन।